गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। तो आप मैसेज पे ही बात करें, जितना हो सके उतना। यस, गुड। तो एग्जाम्पल 21 जो हमें करना है बेटा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्व। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो बेटा उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम करेंगे कैसे इसको। कल बेटा मैंने आपको करवाया था क्या कि डिटर्मिनेंट की हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक मेथड था हमारा क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके, और दूसरा मेथड था हमारा क्या कि रो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। यस, क्या हो जाएगा बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा तो ए बी सी, बी सी ए, एंड here I have C A B. It's square. So square can be written as like this: A B C, B C A, and C A B. Okay, beta. So I can write like this. Now, what I require here A square minus, and here I have A square, B square, C square in our matrix multiplication. Okay, row multiplication: a square, b square, c square. So it's not a work. So what we have to do, I have to just change its column. Okay, so I require here, what I require here beta, here I require a square, so a into a square. Okay, now I require here bc, so I have to just interchange column. Okay, so change these column, this one to this one. Okay, or you may interchange your rows also, you may interchange your rows. Okay beta, so what will be my result here after interchanging the columns? Yes, next slide में लिख रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। C2 interchange into C3. So in first determinant you have to write as it is. What's my values? A, B, C, B, C, A, and here I have C, A, B. In second determinant I have to make this change in determinant 2. So this one is my determinant 2. This one is determinant 1. This one and this one is my determinant 2. Okay beta, so do these changes. So what's I get here? A, B, C as it is. Here I will have C, A, B, and after that here I have B, C, A. Any doubt beta? Any student, any doubt? बोलिए। गुड, बहुत अच्छे बेटा, गुड 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 गुड, सुपर। उसके बाद देखो बेटा आगे क्या होगा मेरे पास, क्या हो जाएगा बेटा, देखिए। Yes, now do some changes. Do your multiplication and it will be your row. Okay, so take first row and this one by first row. So what will I get here? I will get a square. Oh sorry beta, so what you have to do, one more thing you have to keep in your mind, when I do these changes, then here I will get negative symbol, here I will get a negative symbol, and if this negative symbol I will take to here, then I will get some change here. So I am writing that before the multiplication: a b c, b c a. As you know that when you interchange your two columns or two rows, then there will be negative symbol. Okay, so here that negative symbol I multiply to first column, minus a minus b minus c, and here I have c a b b c a. Okay beta, so you have to keep in your mind, then when you interchange any two or any two column, then the value of determinant changes by its symbol. Okay, so you have to take this negative value, and this negative value I multiply to first column. Okay beta, so next stage, now do its multiplication. So what will be multiplication beta? First row. So what will be here? Okay, so I will write here the original result
I am doing multiplication here this side. So beta minus a square, it's rough work I am doing. Okay, after that I will erase it. Minus a square, okay, and after that plus bc and plus bc. So I get 2bc minus a square, 2bc minus a square. Any doubt? Okay beta, now do this multiplication taking this one first row and first row as it is, take second row, and I will get the element here. Okay, so what will be my result? Beta a into minus b, so minus ab, plus b into a, so plus ba, plus c into c, so I will get c square. Okay beta, any student any doubt? Good. So after doing some these, I will get here c square. Like that I have to do for multiplication for the third row, and I will get here third. Okay, so it will be here a into minus c minus ac, b into b, so plus b square, c into a, so plus ac, so ac cancel out, and I will get here b square. Okay beta, any doubt, any student? Okay, so beta, keep in mind that when I take row 1 of the first determinant and row 1 of the second determinant, then the element I will get, that will be A11. Okay, I will take if indeterminate A R1 and indeterminate 2 R2, then I will get element A12. Okay beta, like that if you will take R1 and here R3, then you will get element A13, like that. Okay, so you have to proceed like that beta. Solve now for the second. If you will take second, then you will get here element. Okay, yes or no? And after that if you will take third, take a third, this one, then you will get your element here. Okay, so do the fast calculation and write your answer in your message box. Hurry up. Very good beta. Yes, I got messages of some students. Very good. Very good Bhavna. Good beta. Good. You are doing so well. Very good Manisha. Good. Kailas, very good. Both अच्छे beta. Super. Good. So what will be your result? That I got your result here are like this. Yes beta. So your result are here c square, and here as I came to know, your result is 2ac minus b square, and here your result was a square. Good. So beta, like that you can prove your all these things. Okay, so here you will get b square, and in next you will get here a square, and last and final you will get 2ab minus c square. Yes or no beta? That you have to prove. That you have to prove. You can check out here. Yes or no beta? Okay, that you have to prove. कर लेंगे बेटा सॉल्व, तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना था. ठीक है बेटा? Yes or no? Any student, any doubt? Please message me. Good. Hurry up. तो ये इस प्रकार से करना था बेटा. ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट? गुड, सुपर, यू आर डूइंग सो वेल. गुड बेटा. यस यस बेटा, आगे हम करेंगे. तो उससे पहले बेटा, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्या कहती है बेटा ये प्रॉपर्टी? देखो, जब भी मैं कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट है जैसे मेरे पास A11, A12, A13, ठीक है, यहाँ पे है A21, A22 और यहाँ पे A23, यहाँ पे है बेटा A31, A32,
और यहाँ पे A33। तो जब भी मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ तो कैसे निकालते हैं बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मतलब दिस वन। ठीक है, हम कैसे निकाल लेते हैं कि A11 मल्टीप्लाइड बाई F11, ठीक है, प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाई F12 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाई F13, मतलब एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। ओके बेटा, लाइक दैट। और क्या लिख सकता हूँ मैं, A21 F21 A12 21 22, here I will 22 F22 plus A2 F23, so you will get the same value। या फिर मैं और क्या लिख सकता हूँ, थर्ड बेटा A31 F31 प्लस A32 F32 प्लस A33 F33। ठीक है, तो इससे आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो एक ही आएगी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ वन रो, किसी भी एक रो या कॉलम के, किसी भी एक रो या किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मैं किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो रिजल्ट मेरा 0 होगा। क्या कहता है ये कहता है बेटा कि A11 को अगर मैं, ठीक है, दूसरे किसी भी, ठीक है, फैक्टर मल्टीप्लाई करवा दूं, देखो कैसे, इस प्रकार से बेटा, अगर मान लेता हूं मैं फर्स्ट रो के बेटा कोफैक्टर ले लूं और सेकंड रो के एलिमेंट ले लूं, किसके एलिमेंट ले लूं, सेकंड रो के, तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, हो जाओगे, ठीक है, यस। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये F33 ही, देखो क्या कहता है ये मेरा, कि अगर मैं फर्स्ट, ठीक है, रो के कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या है, ये वाले, ठीक है, इनको अगर मैं सेकंड रो से करवा दूं मल्टीप्लाई, ठीक है, अरे बेटा बात समझा, यस और नो, तो यानी मैंने क्या ले लिया, एलिमेंट तो ले लिए बेटा सेकंड रो के, ठीक है, एलिमेंट तो किसके ले लिए, सेकंड रो के, एलिमेंट मैंने ले लिए किसके बेटा, सेकंड रो के, ठीक है, और कोफैक्टर मैंने ले लिए किसके, फर्स्ट रो के, तो मेरे पास किसके ले लिए बेटा, फर्स्ट रो के, तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी बेटा, 0। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं जल्दी से आपको समझाने के लिए, ठीक है, देखो क्या एग्जांपल है, मान लेता हूँ डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1 2 3 0 1 2 -1 0 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है आपके पास, ठीक है। इसमें देखो बेटा, अगर मैं इसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर लूँ, ठीक है, किसके बेटा, फर्स्ट रो के कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या है मेरे पास, जैसे F11 क्या है बेटा मेरे पास, F11, तो कितना आएगा मेरे पास, F11 कितना हो जाएगा बेटा, 1 × 1 -0 तो 1, ठीक है, F12 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस में, ठीक है, और कितना है मेरे पास, कोफैक्टर मैं निकाल रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यस 1 0 -2 माइनस माइनस +2, ठीक है। इसी प्रकार से F13 क्या हो जाएगा बेटा, F13 मेरे पास 0 -1 प्लस, ठीक है, तो +1, ठीक है। इसको अगर बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, सेकंड रो के एलिमेंट से, किससे करवा दूँ, सेकंड रो के एलिमेंट से, यानी A21 F11 प्लस A22 F12 प्लस A23 F13, तो देखो रिजल्ट क्या आता है मेरा, ठीक है, चेक करो बेटा क्या आएगा आपका रिजल्ट, 0 × F11 यानी 1 प्लस 1 × F12 यानी 2 प्लस में, ठीक है, A23 कितना है बेटा, 2 इंटू में कितना है मेरे पास, 2 × 1 2 × 1, ठीक है बेटा, आ रही बात समझो, आगे देखो क्या हो जाएगा मेरे पास,
यस गुड। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना कि फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास फैक्टर आई जे निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है, -1 रेज टू पावर आई प्लस जे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, ठीक है, आई ए आई जे। अरे बेटा बात समझे, तो ये ध्यान रखना -1 रेज टू पावर आई प्लस जे। तो फर्स्ट एलिमेंट इसके लिए बेटा पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे F12 मेरे पास किसका आएगा, नेगेटिव का, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, 0 × 1 0, -2 + 2 विच इज इक्वल टू 0। आ रही बेटा बात समझे। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। तो मतलब किसी भी जैसे रो 1 के, ठीक है, कोफैक्टर लो। मैंने कोफैक्टर तो किसके लिए बेटा, रो 1 के, कोफैक्टर किसके लिए, रो 1 के। और एलिमेंट्स मैंने किसके लिए, रो 2 के, सेकंड रो एलिमेंट्स मैंने ले लिए, ठीक है। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, इनको मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 0, ठीक है। इस रिजल्ट को हम काम में लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है बेटा, याद रखेंगे इस बात को। आप और किसी से भी करवा सकते हो, जैसे इससे भी करवा सकते हो, रो 3 से भी करवा सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं को फैक्टर ऑफ रो 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाऊं एलिमेंट ऑफ रो 3 से, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, वो देखो बेटा क्या रिजल्ट आएगा। हाँ जी जल्दी से देखो, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास, A31 F11 प्लस A32 F12 प्लस A33 F13। क्या रिजल्ट आएगा बेटा मेरे पास, वो देखो कितना आएगा, -1 × 1 तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। -2 × 0 तो +0, ठीक है। और फिर 1 × 1 यानी 1, कितना आ गया बेटा, 0, कितना आ गया, 0। कर लेंगे इस प्रकार से, बोलो बेटा किसी को कोई डाउट। ओके, तो ध्यान रखना, अगर जिस रो के मैं को फैक्टर ले रहा हूँ उसको उसी रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तब तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, अदरवाइज वैल्यू क्या होगी, 0। अदरवाइज वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। आ रही बात समझे, गुड, बहुत अच्छे बेटा, गुड गुड गुड, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आपको करना था ये। अब देखो क्या है नेक्स्ट मेरे पास है, तो ये बेटा बात बिल्कुल इसकी गांठ बांध लो, ठीक है। क्या है, जिस रो के मैं को फैक्टर ले रहा हूं उसको उसी रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तब तो मेरे पास वैल्यू आएगी, अदरवाइज वैल्यू क्या आएगी, 0। ये कॉलम पर भी लागू होगा, ठीक है जी हाँ। आगे देखते होंगे अपना क्वेश्चन नंबर 30 बुक का क्या दे रखा है बेटा, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लम आई थी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है बेटा मेरे पास कि डिटर्मिनेंट है और वो डिटर्मिनेंट दे रखा है यहाँ पे ए, ठीक है। क्या दे रखा है बेटा, अभी हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। यस गुड 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 गुड, हाँ यस बेटा। देखो ये टोटली डिफरेंट है बेटा, थोड़ा सा इसमें वैल्यू दे रखी डिटर्मिनेंट की हमें क्या, A1 A2 A3, A1 A2 A3, और यहाँ वैल्यू है बेटा B1 B2 B3, और यहाँ वैल्यू क्या है, C1 C2 C3। और क्या दे रखा बेटा इसमें कि A1, ठीक है, B1 C1 लाइक दैट, ठीक है। ये क्या है, को फैक्टर ऑफ ए एलिमेंट A1 B1 C1, ठीक है। A1 को फैक्टर ऑफ, ठीक है बेटा, इज को फैक्टर ऑफ A1, ठीक है, इज को फैक्टर ऑफ B1, इज को फैक्टर ऑफ C1, ठीक है बेटा। तो अब हमें प्रूव क्या करवाना है, टू प्रूव, ये तो B1 है, ठीक है बेटा। प्रूव क्या करवाना है मुझे, प्रूव करवाना है वो करवाना है कि बेटा डेल स्क्वायर इज इक्वल है किसके, A1, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है बेटा। आ रही बात समझे, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बेटा।
अब करूँगा कैसे मैं इसको, इसमें मैं मान लेता हूँ बेटा क्या, हम एज्यूम कर लेंगे कि जो डेल डैश है, ठीक है, डेल डैश वो मैं एज्यूम कर लूँगा, वो क्या है मेरे पास ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। आ रही बेटा बात समझे, ठीक है, बहुत अच्छी बेटा, गुड। आगे देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो अब मैं अगर डेल डॉट डेल डैश मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा इसका A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। और यहाँ पे C1 C2 C3, ठीक है बेटा। तो अब करवा दीजिए प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास, देखो डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट की है तो मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, वही काम हमारा फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो के साथ तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा मेरा, किया था ना हमने, करो बेटा जल्दी से, गुड। जी लाइक दैट बेटा, हमें सॉल्व करना है, लिख दीजिए वैल्यू जल्दी से। ठीक है बेटा, लिख देंगे सभी बच्चे, और लास्ट में बेटा यहाँ भी लिख दीजिए, गुड, सुपर। कितने बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनका यही आंसर आया है अब तक जो मैंने किया है, यस, लाइक ही कर दीजिए जिनका यही क्वेश्चन आंसर है, यस गुड। जो मैं अभी कर रहा हूँ वेरी गुड, थोड़ा सा बेटा है लेकिन इंटरेस्टिंग, ठीक है, हो जाएगा बेटा इतना। उसके बाद देखो क्या करना है हमें, अब देखो ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आओ बेटा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये मैंने करवाते टाइम आपको बताया था कि क्या बताया था मैंने, कि जब मेरे पास जिस रो के मैं एलिमेंट ले रहा हूँ उसको उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तब तो आ रहा है मेरा वैल्यू डिटरमिनेंट की, अदरवाइज वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं किसी और से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो क्या आ रही है, जीरो। इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे यूज करूँगा, तो कर लो भी, यूज करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पे यूज करूँगा मैं रिजल्ट को, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो जो रो लिया वही मेरा कोफैक्टर है, तो ये तो आ गई क्या, डेल, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, आ रही बेटा बात समझे, ठीक है। और जहाँ पे मैंने अलग अलग ले लिए, ठीक है, यानी एलिमेंट तो है फर्स्ट लेकिन कोफैक्टर किसका है, सेकंड रो के, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। लाइक दैट बेटा यहाँ देखो आप, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलिमेंट तो है फर्स्ट रो के लेकिन को फैक्टर कौन सी के हैं, थर्ड रो के, तो ये भी जीरो। हरी बात में इसी प्रकार से बेटा इससे नीचे वाले में देख लो आप, क्या हो जाएगा, एलिमेंट तो ले रखे हैं मैंने रो टू के लेकिन को फैक्टर ले रखे हैं किसके, रो वन के, तो ये जीरो। यहाँ भी बेटा क्या हो जाएगा, रो टू के ही एलिमेंट और रो टू के ही को फैक्टर हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, डेल,
और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, एलिमेंट तो है भाई रो 2 के और रो फैक्टर किसके हैं, रो 3 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक है बेटा, लाइक दैट बेटा आप इनके भी कर सकते हो, लास्ट वालों के क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0, क्या हो जाएगी 0। ठीक है 0, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास 0, क्योंकि रो एलिमेंट तो हैं सेकंड रो के, ठीक है, और को फैक्टर है थर्ड के। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास डेल, क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल। आर यू समझे, ठीक है बेटा, यही समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में। आगे देखो नेक्स्ट, तो बेटा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ चुकी है वैल्यू डेल डॉट डेल डैश इज इक्वल टू डेल 0 0 0 डेल 0 0 0 डेल। ठीक है बेटा, यस और नो, गुड, बहुत अच्छे। अब देखो आगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल डॉट डेल डैश, यहाँ से कॉमन ले लो डेल, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो डेल, और यहाँ से कॉमन ले लो डेल, तो 3 डेल कॉमन आ चुके मेरे पास। अब क्या बच गया यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बेटा, यस और नो, तो यहाँ क्या हो गया डेल डॉट डेल डैश डिटरमिनेंट, ठीक है, यहाँ डेल क्यूब, ठीक है, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, क्या आएगी 1, क्या आएगी बेटा 1। ठीक है डॉट 1, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा डेल इक्वल टू डेल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पावर 3 है। ठीक है, तो अब देखो, अब डेल स्क्वायर है मेरे पास इसके इक्वल, ठीक है, और ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल। ठीक है, अब ये एक्चुअल में किसके इक्वल बेटा, स्टार्टिंग में हमने क्या माना था वो देखो आप, इसके इक्वल माना था a1 a2 a3 b1 b2 b3, और यहाँ पे c1 c2 c3। ठीक है, दैट्स माय सॉल्यूशन, कर लेंगे, तो इस प्रकार से करना था बेटा। ठीक है, एनी डाउट, एनी स्टूडेंट, बोलो बेटा, कर लेंगे, वेल, बहुत अच्छे, सुपर, यू आर डूइंग सो वेल, गुड बेटा। उसके बाद जैसे मेरे पास जो प्रॉब्लम आई है, 2-3 प्रॉब्लम और हैं। ठीक है, यस, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23 प्रॉब्लम है मेरे पास। उसके बाद फिर माधव की है ढेर सारी प्रॉब्लम, मेरा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 23 को ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे मंडे को। एक बेटा आप अपने टेस्ट वगैरह के लिए तैयार रहना, क्विज के लिए। ठीक है, मंडे को अपने डाउट्स वगैरह शेयर कर देना जो भी हों। ठीक है, गुड। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेटा, ये मेरे पास है और ये गिवन है, ये इसका की पॉइंट है। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो क्या दे रखा हमें कि ये मेरे पास है, तो मुझे प्रूव करवाना है कि ये इक्वल है इसके। ठीक है बेटा, देखो कुछ कॉमन आ रहा है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो इसमें दे रखा पी ए क्यू सी आर बी, क्यू बी आर ए पी सी, आर सी पी बी क्यू ए। ठीक है बेटा, तो सोचो कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं, पी क्यू आर। पहले को अगर मैं पी चाहिए कॉमन, ठीक है, क्या हो सकता है, फर्स्ट रो, जी नहीं, तो देखो बेटा, हालांकि अगर आप मल्टीप्लाई करवाने की सोचो कि भाई इसको क्यू से मल्टीप्लाई करवा दूँ, क्यू आर से, ठीक है, इसको पी आर से करवा दूँ और इसको पी क्यू से, तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन जाएगा। ठीक है, उससे पी क्यू आर तो बाहर आ जाएगा आपका, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पी ए क्यू सी आर बी, यहाँ पे क्या है क्यू बी आर ए पी सी, यहाँ पे क्या है आर सी पी बी क्यू ए। ठीक है बेटा, अब एक्सपेंड कर लो इसको, क्या कर लूँ मैं, एक्सपेंड, एक्सपेंड करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, पी ए है बेटा, तो पी ए को बाहर रखिए। ठीक है, एक्सपेंड में करूँगा क्या वैल्यू आएगी बेटा, आर ए इंटू क्यू ए,
तो यानी क्यू आर ए स्क्वायर, क्यू आर ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस में क्या हो गया, बी सी, ठीक है, और पी स्क्वायर, बी सी, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ? कोई डाउट किसी को? यस और नो? यस। एक मिनट में स्टेटमेंट दोबारा चेक कर लेता बेटा, यही है क्या, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है बेटा इसमें। ये क्यू सी आर बी, ठीक है, और क्यू बी आर ए पी सी, ठीक है, आर सी पी बी क्यू ए, ठीक है, इक्वल टू पी क्यू आर ए सी बी ए सी और सी बी ए, ठीक है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, नॉर्मल अपना एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, गुड। अब ये तो हो गया बेटा फर्स्ट, ठीक है, एक्सपेंड यूजिंग R1, ठीक है, R1 को लेकर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये तो मेरा हो गया फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है, इसके लिए मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसके लिए कीजिए बेटा, तो माइनस क्यू बी, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा इसके, क्यू स्क्वेयर ए सी, क्यू स्क्वेयर ए सी, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वेयर ए सी, माइनस में आपका हो जाएगा बी स्क्वेयर पी आर, ठीक है, बी स्क्वेयर पी आर, यहाँ लिख दो बेटा माइनस बी स्क्वेयर पी आर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड ले लो आर सी, आर सी में ले, तो क्या हो गया आपका, आर सी लूँगा तो बेटा आपका यस क्यू और पी क्यू सी स्क्वेयर, पी क्यू सी स्क्वेयर, गुड। और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा आपका नेक्स्ट, यस पी क्यू सी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर ए बी, माइनस आर स्क्वेयर ए बी, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? बोलो, बोलिए बेटा, ठीक है, ये सुनो, ओके। अब करना क्या है बेटा, हमें नॉर्मल अपनी मल्टीप्लाई यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना है, कीजिए बेटा नेक्स्ट स्टेप, करो बेटा सॉल्व, क्या हो जाएगा, पी क्यू को अंदर ले जाओ, पी ए है इसको अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पी क्यू आर ए क्यूब, क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू आर ए क्यूब, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करवा लो बेटा, ठीक है, जल्दी से, गुड, ठीक है बेटा। जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। आ रही बात समझ? किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके गुड, किस किस बच्चे का यही आया है, मैसेज करो, वेरी गुड, गुड गुड गुड, माधव का यही है, गुड, सीमा का भी यही है, गुड, मनीषा का भी यही है, ओके गुड, बहुत अच्छे, सुपर। अब यहाँ से देखो बेटा, कॉमन क्या ले सकता हूँ, फर्स्ट पी क्यू आर ए क्यूब, ठीक है, पी क्यू आर वाले ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है, तीसरा पी क्यू आर कहाँ पे है, ये रहा ऊपर, तो पी क्यू आर कॉमन ले लो बेटा, अंदर क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। और क्या है मेरे पास, ए बी सी है, तो ए बी सी कॉमन ले लो, तो माइनस का ए बी सी कॉमन, अंदर क्या बच गया बेटा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, ठीक है बेटा, यही आएगा मेरे पास। किसी को कोई डाउट? पहले वाले बेटा मैंने पी क्यू आर कॉमन ले लिए, जो बच्चे उनमें से कॉमन क्या ले लिया, ए बी सी, ठीक है। अब आपके पास था एक्चुअल में स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तब मेरे पास था बेटा, ध्यान दिया हो तो पी क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या था, जीरो, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटी याद करो कि पी क्यूब प्लस आर क्यूब, क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, ठीक है। अगर मेरे पास ये वाला हो तो ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है बेटा, यस गुड, जल्दी से मैसेज बॉक्स में डालो मुझे, वेरी गुड, राइट आंसर बेटा, निशा, थ्री पी क्यू आर, गुड, नाइन्थ क्लास में की थी ना ये आपने, गुड 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 गुड। ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल किस करता है, जीरो के, यस गुड, वही प्रॉपर्टी बेटा। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एज इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एज इट इज, ठीक है, माइनस में ए बी सी एज इट इज। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू ये पुट कर दीजिए बेटा,
ठीक है, क्या हो जाएगा 3PQR। हो गया बेटा यहाँ तक। अब पूरे में से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, पूरे में से कॉमन क्या ले सकता हूँ बेटा, PQR कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया AQ प्लस PQ प्लस CQ, माइनस में 3ABC, माइनस में 3ABC। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी, सुपर गुड। आगे देखो, ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए स्टार्टिंग में मेरे पास जब स्टेटमेंट थी तब ये थी बेटा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वल में PQR ये वाला, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँ, इस साइड को भी सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इस साइड को भी क्या कर लूँ, सोल्व कर लूँ, वैल्यू फाइंड आउट कर लो बेटा। तो इस राइट हैंड साइड डिटरमिनेंट है, इसको भी एक्सपेंड कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, करूँगा तो देखो, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या थी मेरे पास, PQR, यहाँ पे था ABC, BCA, और यहाँ CAB, शायद यही था, ठीक है। ACB, ACB, तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ACB, ठीक है। उसके बाद क्या है BAC, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा स्टेटमेंट को, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। C, उसके बाद है B, और यहाँ पे A, ठीक है बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा, करो भाई एक्सपेंड, PQR तो बाहर ही रखो, अंदर क्या हो जाएगा बेटा, A इंटू A स्क्वेयर माइनस BC, ठीक है बेटा, माइनस B बाहर, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो इसको, तो AC माइनस B स्क्वेयर, ठीक है, प्लस C इंटू क्या हो जाएगा बेटा, C स्क्वेयर माइनस AB, ठीक है। इट क्लोज। अब देखो ये क्या हो जाएगा, PQR बाहर ही है मेरा, अंदर क्या हो जाएगा AQ माइनस ABC माइनस, ठीक है, ABC, ठीक है, और प्लस में B, आगे क्या हो जाएगा प्लस में CQ माइनस ABC, हो गया बेटा सिंपल। अब PQR बाहर है, बाहर ही रख दो इसको, अंदर क्या बच गया AQ प्लस BQ प्लस CQ, कितने बच्चों का हो गया बेटा ये, गुड, ये हो गया मेरे पास, ये सुनो, और यही जो आए है ये मान लेता हूँ मेरे पास है सेकेंड, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है बस ये वाले, ठीक है, यानी फर्स्ट। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो दोनों क्या है इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर लेंगे बेटा सो, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है बेटा, ठीक है। करना अपना सोल्व, और जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो हमसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें बेटा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बेटा मंडे को, अपनी अच्छी तैयारी करो क्विज की, ठीक है। गुड, बहुत अच्छी बेटा, गुड। 90, मैं ये कहूँगा मैथमेटिक्स में 100% स्कोर करना है, ठीक है। उसके लिए मैं और आप, ठीक है, दोनों तैयार हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं मंडे को, बाय, हैव ए नाइस डे।